सपना दी, आज आपकी आवाज में इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नूतन जी, गो अहेड। नूतन, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं, यू कैन बी अ बिट सॉफ्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग नूतन जी। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं नूतन देवदीति की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज नंबर 98। अब आप देखिए टाइम कैसे निकलता है। इतना कोविड टाइम, जीवन में मुश्किलें आना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें से पार निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। यही हमारी आर्ट देवदीति में है। देवदीति कहती है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, रखना है तो कदम आगे रख, अपने से प्यार कर और अपने का साथ दे, भीड़ में अपनी पहचान बना, कुछ करके दिखा दुनिया को, तेरे साथ हम सब है ना। देवदीति फाउंडेशन, देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक और देवदीति रोटी बैंक। रोटी बैंक में बहुत 3 साल से चला रही हूँ, देवदीति रोटी बैंक, और बहुत अच्छा चल रहा है। यादव जी को बुलाना चाहती हूँ। वह बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ IBA। फाइंड द अर्थ, हील योर सोल विद आर्ट ऑफ बॉन्साई, ये उनका कहना है। She has given many demonstrations for the different platforms in different associations, national and international. So over to Sheil ji. Yes, thank you, Nutan ji, very much. First, I just want to correct. I have attended many conventions internationally, but I have never given internationally any demonstration. I'm still waiting for that. Once I got an opportunity, but couldn't go there. बस मैंने अभी बोल दिया ना, अब नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल हुए। Thank you very much. Maybe last year का जो मेरा रह गया वो इस साल हो जाएगा। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप लोगों की बहुत आवाज आ रही है। थैंक यू। कंटिन्यू शील, प्लीज कंटिन्यू। Yes, thank you very much. Thanks Devditi, thanks Sapna ji and Rachna for organizing everything. And today I can share whatever my experience of 30 years with you in this field only. So bonsai. I will take a print screen and paste it in a mail. And yes, bonsai is the art of miniaturizing a tree which you find in nature. Sheil ji, I would interrupt. Sheil ji, I would interrupt. Just give me a second and all this noise will be taken care of. Just give me a second. I'm waiting. I'm waiting. Audio करो ना। Sheil ji, can you unmute yourself, please? Yes, Sheil कौन है? Sheil ji? Yeah. जी unmute कर दिया। हाँ जी, बस ठीक है। Now we are done. ठीक है। Yeah. So today we are here to talk about horticulture art, which is very very specialized. That is bonsai. Basically, bonsai क्या है? Bonsai is a Japanese word. It's a combination of two things, bon and sai. This is a tree growing in a shallow container. So this art started basically many centuries ago in Japan, in China, and in India simultaneously. So what happened when the medical practitioner, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं, वो हर्ब से एंड मेडिसिनल प्लांट से दे ट्रीट ailing people. So उस टाइम में भी they used to grow their plants, their herbs and their medicinal plants into light containers, which were very easy for them to carry from one place to another, wherever they used to go to treat people. So they were grown in small containers, and every time they used to pluck leaves of those plants to treat somebody, to make medicine, and gradually with time, those plants took very nice shapes. And from there, this art of bonsai started. Later on, this art was developed by emperors of China. They used to, they couldn't go to natural places, to jungles and other places ki ja nahi sakte the because of the security reasons, or they were so busy. So what those specialists of that area, the special horticulturists who used to develop their gardens, they used to miniaturize the scenes of jungle in their gardens, in the courtyard of the palaces only, so that the
prince, princess and kings can enjoy that thing. So from there this thing developed, and in China it was little different than the Japanese art, because in Japan they used to pay more attention to the single tree development and very very balanced single tree development. But in China they used to create the whole scenery. They used to create fix a rock, a water body. They used to create, they used to miniaturize the trees which used to be there in the forest, so that the kings can enjoy that in there. So from there this developed, and now gradually it's spread all over the world. एंड हमारे यहाँ इंडिया में भी इट वाज डेवलप्ड, जैसे हम लोग तुलसी का पौधा होता है उसको करते रहते तो वो घना हो जाता है, द सेम वे मेडिसिनल प्लांट्स को भी करते थे, और धीरे धीरे ये आर्ट डेवलप होती चली गई है. अब जो उस टाइम के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने नेचर में जो भी प्लांट्स थे दे स्टडीड देम वेरी वेरी वेल. हाँ, they studied it very very well so that they know how to miniaturize the plants. So क्या करते थे वो लोग, स्टडी करते थे, उसके बाद वो पॉइंट्स अपने लिखते थे, और पॉइंट्स लिख के दे मेड पूरी लिस्ट बना ली कि अगर हम प्लांट को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए. इतनी तरह के प्लांट्स होते हैं नेचर में. जैसे अगर आपने देखेंगे कि एक प्लांट है जो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में है, सो आप देखेंगे कि उसका ट्रंक लाइन विल बी वेरी वेरी हैवी एंड पूरे फोलिएज उसका सब तरफ से डेवलप्ड होगा. तो वो एक हेल्दी प्लांट है जिसको हर तरफ से एयर मिल रही है. दैट विल बी मच मच डिफरेंट देन अ ट्री विच इज ग्रोइंग ऑन द क्लिफ. जब क्लिफ पे होता है तो एक स्ट्रॉन्ग उसमें विंड आती है एक तरफ से, तो विंड की स्ट्रॉन्गनेस की वजह से एक साइड की ब्रांचेस उसकी ब्रेक हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है, धीरे धीरे वो लीन कर जाता है क्लिफ से साइड्स को, सी की तरफ को लीन करना शुरू कर, सी को या ग्राउंड की तरफ को लीन करना शुरू कर देता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद में क्या होता है कि उसकी शेप डिफरेंट होगी. इसी तरीके से हर डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जो भी ट्रीज डेवलप होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक टोटली डिफरेंट हो जाती हैं. अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाई गई थी कि किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग में डिफरेंट ट्रीज बनाए गए थे. नाउ आई शो ए स्लाइड शो टू दैट सो दैट आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं ट्रीज. जस्ट अ सेकेंड. सो जो सबसे कॉमन ट्री होता है दैट इज फॉर्मल अपराइट एंड इनफॉर्मल अपराइट. क्योंकि पौधे सब ज्यादातर हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है तो दे स्टार्ट डेवलपिंग अपवर्ड. So this is formal upright. Formal upright is like an army soldier standing really straight without any bend here or there. So the trunk line will be really straight, and first branch will be at the 2/3 of the tree. Second branch will be next on the other side, then the back branch, and the spiral of the branches go on till the top. And इनकी दोनों side से the width decreases till the top. This is formal upright. ये ज्यादातर आपको मिलेगा पहाड़ पे, जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनमें आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं. The next one is informal upright. Informal upright में क्या होता है कि जैसे जैसे वेव विंड के अकॉर्डिंग या जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो द ट्रंक लाइन either leans towards left or right, and then again it takes good curves from here and there, but the top should be somewhere जो ट्रंक लाइन का बेस है उससे 20 डिग्रीज here and there जा सकता है, उससे ज्यादा वो लीन नहीं कर सकता. इधर पूरा वो आपका देखेंगे वो टर्न लेके आके टॉप बेस के आसपास ही रहता है, 20 डिग्रीज लेफ्ट और राइट. सो दिस इज इनफॉर्मल, और ये सबसे कॉमनली अवेलेबल शेप होती है. थर्ड इज स्लांटिंग स्टाइल. ये जो जैसे क्लिफ पे या पहाड़ के ऊपर की चोटी पे पेड़ लगे होते हैं, एक तरफ से हवा आती रहती है तो धीरे धीरे उसकी मिट्टी कट के इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, और वो एक साइड को लीन कर जाते हैं. अब जब लीन करता है तो उसकी ब्रांचेस बैलेंस के लिए एक साइड की जो ऊपर की ब्रांचेस हैं वो उस बैलेंस के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाती है, और एक साइड की ब्रांचेस
दूसरी लेफ्ट को जाएंगी तो दूसरी बैलेंस के लिए राइट को जाती हैं. दिस इज स्लांटिंग स्टाइल. देन कैस्केड स्टाइल. कैस्केड स्टाइल होता है जो पहाड़ की चोटी पे पेड़ लगे होते हैं और वो नीचे की तरफ को झुक के दौड़ते हैं और उसमें ब्रांचेस, जैसे आप कहते हैं ना झरना बहता है, कैस्केड होता है झरने की तरह से बहते हुए उसकी ब्रांचेस नीचे आती हैं. नेक्स्ट इज गुंजन स्टाइल. अब जब आप लोग कोई भी होता है, जब बहुत कुछ सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि अब मुझे सारे रूल्स ब्रेक करने हैं. I just want to do what I want. So the very learned people, bonsai artists, when they were fed up of following all the branches and they wanted to do what they felt like, उस टाइम में वो अपने हिसाब से ट्री को डेवलप करते थे, लेफ्ट राइट, इसके लिए कोई रूल नहीं होता. बुंजिन स्टाइल, it's up to you. Whatever you feel like, you can express that thing into it. And this is weeping style. This is very interesting. नाम इसका weeping style है क्योंकि इसकी सारी branches नीचे को गिरती हैं, लेकिन it's very very interesting style. आपको देख के लगेगा कितना graceful है. Gracefully the branches are falling down towards the ground or towards the water body. And this is penching style. जो चाइना में वो लोग रॉक के ऊपर प्लांट या रॉक के साइड में प्लांट लगाते थे, उसके नीचे वाटर बॉडी बनाते थे. छोटे प्लांट्स के लिए वो मॉस ग्रास लगाते थे. एक फिशरमैन बैठा हुआ है जो कि वाटर बॉडी में से फिशिंग कर रहा है. एक some animals, they used to show animals. So this is penching. This is not only about the one tree. This is about the whole surrounding. आप उसको पूरी सराउंडिंग को मिनिएचराइज फॉर्म में डेवलप करेंगे. दैट इज द पेंजिंग स्टाइल. सो ये तो स्टाइल हुए आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग. आई होप काफी कुछ आपको स्लाइड देखने से क्लियर हुआ होगा. उसके बाद में आते हैं हम नंबर के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को डिफरेंशिएट करते हैं. सो द सिंगल ट्री, then we have twin trunk में we have normally have two trunks developing from the same base, and they both of them balance each other and they make a canopy, a very nice canopy, but the apex is always only one. And then there are triple trunk in which we have three trunks lines and they all balance each other. Then we have multiple trunks कि बहुत सारी पेड़ एक साथ उग रहे हैं and सारे मिला के वो एक कैनोपी बनाते हैं. एंड बॉन्साई में नेचुरली जो कैनोपी होती है वो हमेशा ट्रायंगुलर होती है, बिकॉज इन जापानीज एवरीथिंग दे बिलीव इन धरती, आसमान एंड ह्यूमन बीइंग. सो अकॉर्डिंगली दे हैव द ट्रायंगुलर कैनोपीज. बट अब थोड़े से जो है हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स, जो कि जापान में दे प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव इन. आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्लांट्स में कभी भी आपको ऐसे चोंच या नहीं मिलती है. हमारे यहाँ प्लांट्स ऊपर से राउंडेड ही होते हैं. तो सिंगल एपेक्स नहीं होता, हमारे यहाँ एपेक्स एक होगा और उससे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा दूसरा एपेक्स होगा, तीसरा होगा, तो ऊपर से हमारी कैनोपी राउंडेड होती है. कभी भी हमारे ट्रॉपिकल ट्रीज की कैनोपी पॉइंटेड नहीं होती है. सो इस तरीके से फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं. फिर हम साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं. अब साइज के अकॉर्डिंग हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइज होता है, पहले जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड मामे. उनकी हाइट होती है 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज मामे. ये आपने सारे फीचर्स दिए हुए हैं प्लांट में. ट्रंक लाइन भी है, ब्रांचेस भी हैं, एपेक्स भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. कैन यू सी? It's hardly 6 centimeters or something like that. इससे भी छोटे होते हैं. उसके बाद में हम साइज के अकॉर्डिंग करते हैं मीडियम प्लांट्स. मीडियम प्लांट्स होते हैं 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक. उनको मीडियम आप कहीं भी उठा के देख सकते हैं. आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ये वाला प्लांट है. I'll request my son to just focus it. ये वाला है. This is medium size plant. I think you can see it. Can you see it? अच्छा, ओके. हाँ जी दिख रहा है. यस. हाँ जी. तो इसमें ये आप देखेंगे ये टिपिकल इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल है. इसमें आप देखेंगे यहाँ से बेंड शुरू हुआ
एक बेंड आया, 2 बेंड आया, 3 बेंड आया, और ये बेंड्स जरूरी हैं। आप सीधा खंबे की तरह खड़ा पेड़ नहीं बना सकते, उसमें बहुत ग्रेसफुल बेंड्स होने चाहिए, उसके साथ में आपकी ब्रांचेस डेवलप होनी चाहिए। ऊपर जाते जाते आपकी ब्रांचेस की लेंथ छोटी होती जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी हैं ब्रांचेस, मोटी हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते ब्रांचेस पतली होती जाती हैं और छोटा साइज होता जाता है। ग्रेजुअली उनकी विड्थ प्लांट की कम होती जाती है एंड टॉप आके पूरा इस तरह से आता है। सो दिस इज टिपिकल इनफॉर्मल अपराइट एंड मीडियम साइज। अब मीडियम साइज से बड़ा होता है वरांडा बॉन्साई, जिनको कहते हैं। वरांडा बॉन्साई में दे आर 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर्स, जो कि आप बाहर रख सकते हैं। बड़े प्लांट से वो मैं भी अंदर उठा के नहीं ला पाई थी, इसलिए वो बाहर है, मेरे गार्डन में है। उससे भी बड़े प्लांट्स मैंने देखे चाइना में। आई हैव बीन टू ऑल द बॉन्साई गार्डन्स ऑफ ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वेदर इट्स सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया, चाइना के। और वहां पे क्या है, आपको हर टेम्पल में यू कैन सी बॉन्साई डिस्प्ले, इन एवरी टेम्पल दे हैव बॉन्साई, इवन इन थाईलैंड। तो और उसके बाद में वो डेवलप होता, और उनके गार्डन्स हैं, उनके गार्डन्स में आपको मैं बताऊं, उनकी जो ट्रे होती हैं वो 10 फीट की, 12 फीट की ट्रे, और उसके साथ में उनका पौधा लगा होता है। बिल्कुल बढ़िया बैलेंस बॉन्साई बनाते हैं वो। एंड आपको बताऊं उसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं। उसकी प्रूनिंग सीढ़ी लगा के 2 आदमी चढ़ के एक ब्रांच पे बैठ के कटिंग करके आते हैं। और मैं जब चाइना गई थी, मॉर्निंग में मैं वहां पहुंच गई थी और वहां बैठ के उनका देखती रही थी कि हाउ दे वर्क देयर। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग टू सी देयर। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द साइज। उसके अलावा अब आप साइज वगैरह सब आपको पता चल के अब हमें देख रहे हैं कि प्लांट हमें चूज करना है। आई थिंक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में चल रही हूँ। सपना जी, इट्स ओके? या इट इज फाइन। शील जी, बस एक रिक्वेस्ट आई है कि आप थोड़ा हिंदी में बोलिए प्लीज। मैं सारा हिंदी में कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जब आप प्लांट चूज, होता क्या है, जब अपन हिंदी में बोलते हैं ना तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सही बात थी, हिंदी में ज्यादा टोटल हिंदी, नो प्रॉब्लम। सो उसपे क्या होता है कि आपने साइज एक बार समझ लिया, बेसिक आपके दिमाग में आ गया, फिर उसके बाद आप प्लांट बनाने की तरफ को चलते हैं। तो पहले आपको नर्सरी जाके प्लांट चूज करना है। अब प्लांट कोई भी आप जाके कोई भी प्लांट चूज करके नहीं लेके आ सकते कि हर पौधे का बॉन्साई नहीं बनता। हर पौधे का बॉन्साई आपको चूज कर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? पहली बात तो उसकी वुड हार्डवुड होनी चाहिए। हार्डवुड होगी तो क्या होगा कि आप प्रूनिंग करेंगे तो वो पौधा मरेगा नहीं। और आपने अगर एक बॉन्साई पे काम किया है तो जापान में तो जनरेशन बाय जनरेशन वो देते जाते हैं। वो उनकी 5वीं जनरेशन में ये पौधा मुझे परदादा के परदादा से मिला था, या इस तरीके से उनका चलता है। तो हम लोग भी कम से कम एक जनरेशन को तो दे ही सकते हैं अपने पौधे जो भी बनाएंगे। तो उसके लिए आपको हार्डवुड चूज करना पड़ेगा, ऐसा पौधा जो कि बहुत साल तक जिंदा रहता हो, आपको ऐसा पौधा चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे पौधे हैं। मैं आपको, अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं आपको नाम नोट करा दूंगी। जैसे कि आप जंगल जलेबी का पौधा है, जंगल जलेबी बहुत हार्डवुड होता है, जंगली अपने हमारे। और मैं वो पौधे चूज करने को कहूंगी आपको हमेशा जो इजीली आप मेंटेन कर सके हमारे एटमॉस्फेयर में, दिल्ली के में या बॉम्बे के में या जहां भी हम रहते हैं इंडिया में, हम मेंटेन कर सके। तो उसके लिए एक तो फाइकस की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। फाइकस की वैरायटी में आप सबसे पहले, मुझे पता है एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पक्का आने वाला है कि क्या हम बरगद का बॉन्साई बना सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन है। आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी ब्यूटी उतनी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो जड़ है बहुत सुंदर लगती हैं, ऊपर से गिरती हैं, हर तरफ से जड़ें आती हैं, बहुत सारी एरियल रूट देता है वो। लेकिन आप उसके पत्ते को छोटा नहीं कर सकते। अगर आप इतना सा पौधा बना रहे हैं, आपकी ब्रांच है और उसमें इतने बड़े बड़े पत्ते लगे होंगे, तो 4 पत्ते लगे और आपका पौधा खत्म, तो उसमें वो लुक नहीं आएगी। बनाने को आप बना सकते हो। और बरगद ही तो था जो हम सबसे पहला पौधा मैंने भी बरगद का ही बनाया था, और वो आज भी मेरे गार्डन में एक कोने में बेचारा रखा हुआ है। उसकी कटिंग होती है, 30 साल से उसकी कटिंग हो रही है, लेकिन अभी भी उसकी आधी साइज हो पाया है पत्ते का। तो उसके लिए आप मेहनत करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। ट्रंक लाइन बहुत अच्छी हो जाती है, नो डाउट उसकी। तो उसके लिए फाइकस की और वैरायटी है। पारस पीपल एक वैरायटी आती है,
वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा फाइकस लॉन्ग आइलैंड, फाइकस हाई आइलैंड, देन उसके बाद में ये है, इसको कहते हैं लिपस्टिक फाइकस, क्योंकि इसके क्या होता है, जब इसकी नई पत्तियां आती है तो वो बिल्कुल रेड कलर की आती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है पूरे पौधे के ऊपर आपने लिपस्टिक अच्छे से लगाई हुई है। तो किसी ने इसका नाम लिपस्टिक फाइकस रखा, बोटेनिकली इसका नाम है फाइकस वेरेंस ग्लैब्रा। तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। ये लिपस्टिक फाइकस है जिसके ऊपर मैं काम करने वाली हूँ। उसके अलावा आप जंगल जलेबी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया बॉन्साई बनाने का होता है आपके पौधे मतलब पत्तियां छोटी होनी चाहिए। जो इसके लिए मैं बरगद मना कर रही हूँ, उसी में पत्तियां छोटी वाला पौधा चाहिए आपको, जिसकी पत्तियां छोटी। अब आप देखिए कि उसमें एक पौधा है प्रेमना। प्रेमना का पौधा हमारे पास में मेरे ख्याल से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए 2009 में। हम लोग ताइवान गए थे कन्वेंशन के लिए, वहां से हम लोग ये पौधा लेके आए थे छोटा छोटा सूटकेसों में डाल के, और उससे हमने इतना डेवलप कर लिया कि अब मेरे गार्डन में हेज भी इसी की लगी हुई है, पौधे भी इसी के लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी वो डेवलप होता है। उसपे आप देखिए कि बहुत एक फायदा है आपको। आप देखेंगे इसमें दो पत्तियों का साइज आप देखिए, एक ये पत्ती का साइज है और एक ये पत्ती का साइज है, आपको नजर आ रहा होगा। ये सेम पेड़ की पत्तियां हैं, सेम बॉन्साई में से दोनों पत्तियां अभी मैं काट के लेके आई हूँ। ये क्या होता है, इसकी ब्रांचेस, इस पत्तियां बहुत लंबी होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप उसको काटते रहे तो वो इतने छोटी या इससे भी छोटी हो जाती हैं। सी, अब आपको दिखेगा ये छोटी हुई हुई पत्तियां हैं और ये बड़ी पत्तियां हैं, और ये सब सिर्फ कुछ महीने का कमाल है। तो हमें ऐसे पौधों पे काम करना चाहिए ना, प्रेमना कहते हैं इसको, और आजकल नर्सरियों में ये अवेलेबल हो गया है। 2009 में हम पहली बार लेके आए थे ताइवान से। उसके अलावा आप जेड का बना सकते हैं बॉन्साई। जेड का बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है, उसकी पत्तियां छोटी होती हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। दूसरा, मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रूनिंग बहुत करते हैं, प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा आपका नहीं बनेगा। तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिसे आपने प्रूनिंग की तो डाई बैक होता है, मतलब आपकी ब्रांच मरनी शुरू होती है, धीरे 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 वो ब्रांच मर जाती है, तो आपका डिजाइन खराब हो जाता है। तो उस तरह के पौधे, जैसे अब अगर आप मैं बताऊं आपको, हर सिंगार का पौधा, अपरिजात जिसको बोलते हैं, उसके पौधे को आप बॉन्साई नहीं बना सकते। उसकी पत्ती छोटी होती है, फूल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका बॉन्साई नहीं बनता। हमने बहुत ट्राई किया है। क्या होता है उसके साथ में, आप काटेंगे उसकी जो स्टेम होती है वो हॉलो होती है अंदर से, तो जहां आपने काटा वो डाई बैक करना शुरू करता है, और वो आपने बड़े अच्छे से डिजाइन किया, वो थोड़े दिन के बाद मर जाता है सारा पौधा। तो इसलिए ऐसे पौधे नहीं हम चूज करते हैं। तो इस ढंग से आपको पौधा चूज करना है। अब आपका पौधा भी चूज हो गया, उसके बाद आपका आता है उसके ऊपर काम, जो कि बहुत है। और ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा खुद। आप किसी से मेरे पास ले आए, मैं काट दूं, और इतने सारे बॉन्साई आर्टिस्ट हमारी एसोसिएशन में एक से एक बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर उनके पास ले जाएं वो काट दें, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बॉन्साई जो है ना, ये है लिविंग आर्ट। ये नहीं है कि आपने एक कैनवस बनाया एंड उसमें लगा दिया, उससे नहीं बनेगा आपका। ये लिविंग आर्ट है, 15 दिन के बाद ये फिर उतना ही भर जाएगा, और आपको उसको फिर से शेप में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब तो इतनी फैसिलिटीज हैं। मैंने 1988 में स्टार्ट किया था। उस टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था, गिनती की बुक्स थी। हम उन्हीं बुक्स को पढ़ पढ़ के, रट रट के, एक दूसरे के घर जाके सीख के हम लोगों ने सीखा ये आर्ट। और आज की डेट पे तो आप इंटरनेट खोलिए और आपके पास 100 वो डिटेल एक साथ आ जाती हैं। तो अगर आप कहीं भी अटके, इंटरनेट खोलिए, डिटेल सारी है। हमारी एसोसिएशन है, उसकी वेबसाइट है, उसमें हम लोग डालते रहते हैं डिटेल्स, आप वहां से ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल देयर टू कांटेक्ट। मैं नहीं, मेरे अलावा भी सब जितने हमारे बॉन्साई आर्टिस्ट, एवरीवन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप किसी से भी कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हो जाएगा। सो प्लीज, अगर आप एक पौधा बनाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, क्योंकि रीजन बीइंग मैं आपको बताती हूँ, ये एक ढंग की मेडिटेशन है। बॉन्साई क्रिएशन इज ए मेडिटेशन। आप मतलब इवन जो बुद्धिस्ट थे वो भी मेडिटेशन के लिए ही इस काम को करते थे।
और मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और अब धीरे धीरे गुस्सा आता भी है, आएगा नहीं, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बट मैं एक पौधा लेके बैठ जाती हूँ, उसके साथ 3 घंटे काम किया, 1 घंटे काम किया, यही नहीं पता होता गुस्सा था या नहीं था, किस चीज पे था, वो सब खत्म हो जाता है। एंड अभी लॉकडाउन टाइम तो मेरे लिए शायद ये वाली आर्ट बहुत बहुत यूजफुल रही, क्योंकि बाहर आप कहीं जा नहीं सकते, और मेरे पास मेरे इतने पौधे हैं कि रोज एक पौधा माली से रखवा लिया, उस पे काम किया, आपका दिन के 3-4 घंटे आराम से निकल गया, पौधा भी तैयार हो गया, आपका टाइम भी निकल गया, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आई है। मैं तो कह रही हूँ मेरे लिए तो ये एक बहुत बोनस टाइम आया है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से अपने पौधों पे काम कर पा रही हूँ। कहीं जाना नहीं, कोई किटी पार्टी अटेंड नहीं करनी, किसी उसमें नहीं जाना फंक्शन में, जस्ट वर्क ऑन माय प्लांट्स। तो ये एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है, जो मेरे ख्याल से हम इंडियन लेडीज के लिए तो बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास तो 70 पंगे होते हैं रोज के, उनसे जूझना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो हमें चाहिए, अपने भड़ास को निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये एक पौधा है, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि पौधे पे काम कैसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पौधा नर्सरी से चूज करेंगे, एंड प्लीज अगर आप नर्सरी जाते हैं, एक चीज आप देख लीजिए, वहां आजकल चाइना से आए हुए बहुत पौधे आपको मिलेंगे, जिनको नर्सरी वाले, जो स्पेशलाइज नर्सरी वाले, वो कहेंगे जी ये बॉन्साई चाइना से आया, और आप टेम्पटेशन में कि इम्पोर्टेड है आप लेके आ जाएंगे। टिपिकल आप उसमें देखेंगे एक एस शेप आती है, कि जैसे ट्रंक लाइन है, यूं गई और यूं गई, पूरा ऐसे एस शेप बनती है, वो टिपिकल चाइना के। आप ले आएंगे, डिस्प्ले करेंगे, लेकिन आगे उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने मतलब ये है कि चाइना से आई थिंक 2010 और 12 में हमने पूरा एक कंटेनर मंगवाया था चाइना से प्लांट्स का, हम सब फ्रेंड्स थे मिलके। लेकिन उसके लिए हम लोगों के से एक आदमी गया था, जिससे चूज कर करके लाया था, जो मटेरियल था, मटेरियल लेके आए थे हम, पौधे तैयार कोई नहीं लेके आए चाइना से, हम वहां से मंगवाया था, और उनके ऊपर हमने काम किया था उस टाइम में। और अब वो पौधे हमारे तकरीबन डिस्प्ले के लिए, जो हमारी एनुअल एग्जीबिशन होती है, सपना जी तो एक बार आई भी थी हमारी एग्जीबिशन में, तो वहां पे हम लोग साल में एक बार डिस्प्ले करते हैं, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन। न्यूज़पेपर में हम लोग एड निकालते हैं, आप लोग सब, अभी तो कोविड की वजह से इस साल की हमने कैंसिल कर दी है, नेक्स्ट ईयर की होगी, तो आई होप मैं सबको आपको वहां पे देखूंगी, एटलीस्ट उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। तो हम लोग उस पे काम करते हैं पौधे पे, और एक दूसरे से बहुत हेल्प मिलती है। आज की डेट पे जो मेरी गुरु थी, जिनसे मैंने सीखा था 80s में, शी इज माई फ्रेंड नाउ, और हम दोनों बैठ के करते हैं एक दूसरे को, तूने ये किया, नहीं मैंने ये किया, तूने किया, ऐसे कर करके हम एक दूसरे से सीखते हैं। और हमारे बीच में कोई ये नहीं है कि मैं उसको गुरुजी कह के पैर छूंगी तो वो मुझे 2-4 डांट लगा के भगा देती है। So she says, you are my friend and we are all working on our plants. So that type of friendship we all have in association. हम एक दूसरे के पौधे से डिस्प्ले भी होते हैं, तो बताते हैं एक दूसरे को, तो पौधे में ये गलती है, घर जाके इसको काट के सुधार लेना, या हम वही कैंची दे देते, लो भाई जिसको गलती लग रही है काट के इसको साइड कर दो। So that way we learn from each other. अब ये प्लांट है, ये मैंने बिल्कुल उससे डेवलप किया था, एक कटिंग से, इतनी पतली सी कटिंग थी, तकरीबन ये समझ लीजिए आप, इतनी पतली कटिंग थी मेरे ही पौधे की, उससे ये हुआ है। मैं क्या कहते, कटिंग लगाते जाते, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाते, फिर उनको ट्रे में हम ट्रांसफर करके फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये पौधा है, इसमें जो पहली ब्रांच होनी चाहिए वो लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ को हो सकती है, और उसमें हमें ये है कि डेवलप करना है, और वो सबसे थिक वाली ब्रांच होती है। तो ये वाली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच ये है, इसको बहुत काटते काटते ये तकरीबन, मतलब अंडर ट्रेनिंग ये पौधा, आप समझिए 3-4 साल से तो अंडर ट्रेनिंग चल रहा है ये पौधा। तो ये फर्स्ट ब्रांच है, अभी मैं कटिंग करूंगी तो आपको सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच, ऐसे करते करते ऊपर तक इसमें ब्रांचेस गई हुई है, जिनको मैं अभी कटिंग करूंगी तो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, डेवलप करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आप कटिंग है, कट एंड ग्रो के मेथड से आप डेवलप करेंगे। कट एंड ग्रो मेथड से क्या होता है, आप पर्टिकुलर प्लेस पे कट करते जाते हैं, फिर वहां से नई ब्रांच, सपोजिटली मेरे पास ये पौधा है, आपको दिख रहा होगा तनेवुद्दीन,
वाइट वाला पोर्शन। She is Tanya, my daughter-in-law. She is helping me a lot in organizing this thing. So this is one branch. अगर ये है, इसको मुझे डेवलप करना है तो मुझे डिसाइड करना होगा, नहीं छोड़ दूंगा, तो इसको मैं देखना होगा कि मुझे अगर लेफ्ट को ब्रांच चाहिए तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये लेफ्ट में एक ब्रांच जा रही है या पत्ती जा रही है, इवन पत्ती भी जा रही है, तो आप उसके ऊपर से इसको कट कर दीजिए। यहाँ से अगर आप जैसे कट करेंगे तो ये यहाँ से नई जो ब्रांच इसकी आएगी वो यहाँ से आएगी। अब हाँ, यहाँ से ये नई ब्रांच इधर से आएगी, फिर आप ये ब्रांच बढ़ जाएगी, फिर उसको कट करेंगे, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में। इस तरीके से करते करते हम डेवलप करते हैं। और जैसे आपके पास एक टहनी है, अब आप उस एक टहनी तो नहीं होती, आप उसमें देखेंगे जब पूरा पेड़ देखते हैं तो उसमें पूरा टहनियों का जाल बना होता है। उस जाल को हमें डेवलप करना है हर टहनी में। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे पहले एक टहनी है, इसको आपने यहाँ से काटा, 2 पत्तियां हैं, 2 ब्रांचेस डेवलप होंगी, आपके पास 2 आ गए, उनमें से एक को हटा दीजिए, तो आपके पास 2 ब्रांचेस हैं। 2 ब्रांचेस के बाद में फिर यहाँ पे 2 पत्तियां हैं, आप वहां काटेंगे तो उसकी 2 ब्रांचेस बन गई, इसकी 2 ब्रांचेस बन गई, फिर इनको काटते जाएंगे तो ऐसे करके पूरा पत्तियों का जाल, टहनियों का जाल बन जाता है। जो हमें चाहिए वो पूरा जाल वेब डेवलप चाहिए होता है हमें हर ब्रांच के अंदर, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है। लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा डेवलप होगा आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपको डेवलप करना है। दूसरा तरीका, एक तो हो गया कट एंड ग्रो मेथड, दूसरा होता है वायरिंग से। अब वायरिंग के लिए आपको वायर चाहिए होती हैं डिफरेंट गेज की। देखिए ये वायर्स होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है। इनको हम लोग, एक प्रोसेस होता था पहले, हम लोग खुद करते थे कि उपले जला के और वायर के बंडल उसमें डाल के और धीमी धीमी आंच पे वो 10-12 घंटे तक सिकते रहते थे और फिर उनको निकालते थे। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते थे, इतने सॉफ्ट कि आप उनको कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो लेकिन अब अगर आप खारी बावली जाएंगे तो वहां पे आप वो पूछते हैं आपसे, आपको एल्युमिनियम वायर चाहिए किस लिए, पौधों के लिए चाहिए, तो वो अलग जगह से निकाल के आपको ऑलरेडी एनुअल वायर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी पड़ती, आपको तैयार मिल जाती। खारी बावली में बहुत दुकानें हैं, कहीं से भी हम लोग पूरे, और हम लोगों को तो चाहिए होते किलो के हिसाब से, तो हम 5 किलो एक डिफरेंट गेजेस की मंगवाते हैं। ये होते हैं सबसे छोटा गेज, ये 2 मिलीमीटर का गेज, 1 पॉइंट समथिंग का है। तो ये सबसे जो पतली आपकी ब्रांचेस हैं उनके लिए उनको ट्रेन करने के लिए ये वाली आपको गेज चाहिए। इसके बाद ये गेज होती है कि थोड़ी सी मोटी ब्रांचेस के लिए, ये ऐसे करते करते बहुत सारी गेज मिलती हैं। और उसके बाद भी ये वाले तार भी, इससे ज्यादा मोटे को हम भी नहीं मोड़ सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए टेक्निक ये होती है कि आप एक बारी पूरी वायर को घुमाते हैं, फिर दूसरी लेयर लगाते हैं, फिर तीसरी लेयर लगाते हैं, जितना बेंड करना होता है उस हिसाब से करते जाते हैं। तो ये वायर्स हैं, इसके बंडल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब इनको वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग करने के लिए प्लांट पे तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इसके ऊपर दिखाती हूँ, क्योंकि प्लांट में पत्तियां आपको नजर नहीं आएगा वायरिंग कैसे करनी है। आपने ये वायर ली, आपको 2 उस पे करनी है, 2 ब्रांचेस को करना है। कभी भी आप एक ब्रांच को नहीं कर सकते वायरिंग, क्योंकि एंकरिंग नहीं होगी, फोर्स कहाँ से आएगा। 2 ब्रांचेस होंगी तभी आप फोर्स लगा पाओगे। आप यहाँ से शुरू करके इसको पूरा वायर करके इसको झुकाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एंकर नहीं है, फोर्स तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है 2 ब्रांचेस को करना है। अगर आपके पास एक ब्रांच है तो आप तने पे थोड़ा सा यहाँ तक लपेट दीजिए, उसके बाद आप कीजिए। अब मेरे पास जैसे 2 ब्रांचेस हैं, तो मैं ये वायर ली, इसको यहाँ से शुरू करती हूँ, इसको ऐसे घुमाते हैं, यहाँ पीछे से लेते, कभी भी आप तने के आगे से वायर नहीं लेते। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, पीछे से मैंने लिया वायर, और इसको नीचे से, हमेशा जो पहला बेंड आता है नीचे से आता है, यहां से आता है। उसके बाद आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे घुमाते जाएंगे वायर को,
45 डिग्री के एंगल पे आपकी वायर घूमनी चाहिए पेड़ के साथ में, और बिल्कुल सट के चलनी चाहिए, आपको गैप नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। इस तरीके की दूसरी वायर से आप एक वायर आपकी क्लॉकवाइज जाएगी, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस तरीके से आपको वायरिंग घुमानी है। उसके बाद आपके पौधे पे सपोर्ट आ जाएगी। फिर आप इसको जब भी करेंगे, अभी ये तो बहुत हार्ड वुड है, उस पे करोगे, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे हमेशा। जब भी आप वायरिंग करेंगे आपकी 2-3 उंगलियां यहाँ नीचे होनी चाहिए, नहीं तो आप जब भी झुकाएंगे आपका पेड़ टूट जाएगा। यहाँ पे आप सपोर्ट देके दूसरे हाथ से ऊपर से आप झुका के करेंगे, वो मैं उस पेड़ के ऊपर करती हूँ। सो अब मेरे इसके टाइम बचाने के लिए नहीं बचा हुआ टाइम करना पड़ेगा। ये मेरी वायर है और मैं ये ब्रांच और इस ब्रांच को एक साथ वायर करूंगी। नहीं, I'll do it। ये पत्तियों की वजह से आपको नजर बिल्कुल नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैंने आपको पहले लकड़ी पे दिखा दिया है। 45 डिग्री के एंगल पे एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो अपने आप ही 45 डिग्री के एंगल पे वायर घूमती चली जाएगी। 45 डिग्री के एंगल के ये फायदा होता है कि आपकी पौधा बिल्कुल आपका सही डायरेक्शन में जाता है। उसको हर तरफ से जब स्ट्रेस आप करेंगे, उसको फोर्स लगाएंगे तो बैलेंस फोर्स चलेगा उसके ऊपर, कहीं से टूटने की कम से कम चांसेस होते हैं। ये नहीं दिखेगा, कोई पॉइंट नहीं है कैमरा पास लाने का। सो इस तरीके से आप इसको वायर कर दीजिए। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और वायरिंग ऐसी चीज है जिसको जितना सीखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी है। आज भी हमारी वायरिंग में बहुत गलतियां निकल जाती हैं और हम अपने गुरुजी से डांट भी खा लेते हैं उस चीज के लिए। जहां आपने गैप छोड़ा वहीं आपके पौधे के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी वायरिंग करनी है आप कोशिश कीजिए गैप ना हो बीच में। वायरिंग करते ही आप अपने प्लांट को किसी भी डायरेक्शन में, मैं कहा हूं, जैसे वायरिंग कर दी तो अब मैं इसको यहाँ पे सपोर्ट देके आप किसी भी डायरेक्शन में इसको प्लांट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर ले जाना है आप ऊपर ले जा सकते हैं, आपको नीचे डाउनवर्ड करना है डाउनवर्ड कर सकते हैं। आप जिधर को भी ब्रांच को ले जाना चाहेंगे आप उसको आगे लेके आना है, मैं इसको आगे ला सकती हूँ। पीछे लेके जाना है, मुझे लग रहा है पीछे चाहिए तो मैं इसको पीछे ले जा सकती हूँ। वायरिंग करते ही आपके हाथ में आ जाता है कंट्रोल। आप उसको अकॉर्डिंगली कहीं भी जहां आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग सूट करते हैं वहां आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब ये देखिए, और जैसे आप नेचर में देखते हैं पौधे हमेशा, जितना नया पौधा देखेंगे आप वो उसकी सब टहनियां ऊपर को जाती हैं, और जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है, डेवलप्ड होता जाता है, उसकी टहनियां आपको हमेशा झुकती हुई नजर आएंगी। तो वो झुकी हुई टहनियों का इफेक्ट के लिए आपको करना पड़ेगा। इससे वायरिंग आपके लिए जरूरी है। ये मेरी फर्स्ट ब्रांच है, ये मेरी सेकंड ब्रांच है। अकॉर्डिंगली आई हैव ऑलरेडी वायर्ड अदर ब्रांचेस, उनको मैं उनकी जगह पे एडजस्ट कर देती हूँ जहां मुझे चाहिए। उसके आप देख रहे हैं मैं उसके हाथ का सपोर्ट मेरा नीचे है, हाथ का सपोर्ट मैं नीचे देके फिर उसको टर्न कर रही हूँ सो दैट कि वो टूटे ना। और नीचे को लाके आपने नीचे को नहीं छोड़ना, उसकी जो टिप है ये हमेशा आपकी ऊपर को आएगी, क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए। सनलाइट चाहिए तो इसलिए आप उसको गिरी हुई हालत में नहीं छोड़ेंगे, आप ब्रांच को नीचे ले जाके फिर ऊपर को टिप उसकी ऊपर को हमेशा रखेंगे। टिप हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आई विल एडजस्ट, सारी ब्रांचेस को मैं एडजस्ट कर देती हूँ।
काम इसमें पौधे में इतना होता है कि आपको सारी ब्रांचेस को ही वायर करके या कट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैंने काफी सारी ब्रांचेस को कर दी, अब इसमें मैं एक्स्ट्रा, अब मुझे पता है कि ये मेरी प्लेसमेंट है। नाउ आई विल चॉप ऑफ ऑल द अनडिजायर्ड ब्रांचेस और लीव्स। सो आपको कोई जब उसको वेब बनाना है तो आपकी एक प्लांट को लेट इट ग्रो। जब वो उस जगह पे जब उस जगह पे बढ़ जाती है ब्रांच, आपने ये नहीं करना कि मतलब हर रोज आपका पौधा परफेक्ट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव दैट प्लांट अ टाइम पीरियड टू ग्रो। ठीक है, उसके जब वो ग्रो हो जाता है उसके बाद आप उसकी कटिंग शुरू करेंगे। अब लाइक दिस, आई हैव दिस ब्रांच, ये ब्रांच है और मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए, तो 4 पत्ती या 2 पत्ती छोड़ के, और मैं नीचे वाली, आप देखेंगे नीचे को लीफ जा रही है, मैं इसके ऊपर कट दूंगी, इतना ऊपर कट। तो अब क्या होगा कि जो नई ब्रांच आएगी 15 दिन के बाद, वो इसके नोड से आना शुरू होगी। जब इसके नोड से आएगी तो वो ब्रांच नीचे को डेवलप होगी, वो जो मुझे चाहिए। इसी ढंग से मेरे जहां चाहिए आपको पत्तियों में ना, आपको पत्तियों, हर पेड़ की पत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे अब ये पत्ती है, आप इसमें देखेंगे एक लेफ्ट को जा रही है पत्ती, एक राइट को। अगर मैं इसको यहां कट करती हूँ तो जो मेरी अगली ब्रांच है 15 दिन के बाद आएगी, वो इसके नोड से निकलेगी, वो राइट को जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे कट करती हूँ तो नेक्स्ट यहां से आएगी, तो वो लेफ्ट को जाएगी पूरी ब्रांच। अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में ब्रांच आपके में नहीं है और आपको वहां चाहिए, तो वहां पे आपको कट देना है। जो आपके सीखने की चीजें कटिंग की वो यही है। अगर आपने अकॉर्डिंग, पौधा अपने आप बताता है, आपको उस पौधे के अकॉर्डिंग सीखना है कि मतलब बस वही सीखना है। अब जैसे ये है जेड का पौधा, जिसका बहुत सुंदर बॉन्साई बनता है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा छोटा बॉन्साई है, बहुत छोटा है ये, आप देखिए कैस्केड स्टाइल में बना हुआ है। ये यहां से आप देखेंगे, ये यहां तक है, ये टॉप है, इसका कैनोपी हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये पूरा नदी की तरह, झरने की तरह बहता हुआ जा रहा है, और इसके दोनों तरफ को इसकी बैलेंस ब्रांचेस को डेवलप किया गया है। आई थिंक दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये इस तरीके से, और जेड का बहुत खूबसूरत, बहुत जल्दी बनता है। तो जेड के पौधे में क्या होता है, आप देखेंगे इसमें ब्रांचेस 4 तरफ को होती हैं, पत्ती 4 तरफ को होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, ये देखिए इसमें यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ भी है, और इधर से आप देखेंगे तो इधर भी है और इधर भी है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे आपका पौधा बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो इसमें आपको यूं काटेंगे तो आपकी 2 तरफ 2 ब्रांच आई, फिर इसको काटा 2 ब्रांच, फिर इसको काटा 2 ब्रांच, इस तरीके से आपका बहुत जल्दी बन जाता है। मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा टाइम बचे। आप इस इन बिटवीन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। किसी के पास कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझसे पूछिए। How much time do you need to make or develop one bonsai? See, just I told you कि ये तो ongoing process है। 50 साल बाद भी पौधा कभी कंप्लीट नहीं होता और 100 साल बाद भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जापान में तो वो 150, 200, 250 साल पुराने पौधे हैं, वो आज भी उनके ऊपर काम करते हैं। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री पौधा आप 2 से 3 साल में बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप उसको ठीक से काम करें तो 2 से 3 साल में आपका परफेक्ट बॉन्साई डिस्प्ले के लायक तैयार हो जाता है। यस, दिस इज फाइकस विरेंस, इसको लिपस्टिक फाइकस कहते हैं। इसकी पत्तियां मौसम में बिल्कुल लाल रंग की हो जाती है, जब नई पत्तियां आती हैं टोटली रेड होती है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है शील बॉन्साई, उस पर जाकर देखेंगे तो अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले मैंने बिल्कुल पौधे की फोटो डाली है, टोटली रेड पत्तियां हैं इसकी। When is a good pruning time? This is pruning time in India, Delhi, in Bombay, in Bangalore, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां तो आपको साल भर पौधों पे काम कर सकते हैं। दे आर वेरी फॉर्चुनेट।
हम लोग इतने लकी नहीं हैं दिल्ली में, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत जबरदस्त होती है, 2-3 महीने तो गर्मी के निकल जाते हैं और 2 महीने सर्दी के निकल जाते हैं जब हम अपने पौधों को सिर्फ बचाते हैं। तो वो टाइम है जब आप प्रूनिंग नहीं करते। तो हमारे यहाँ प्रूनिंग का टाइम है फरवरी जनवरी एंड, 26 जनवरी के बाद आप अपने पौधे को प्रून कर सकते हैं और जुलाई में पहली बरसात हो जाए उसके बाद आप अपने पौधों पे जितना मर्जी काम कीजिए। सॉइल मिक्सचर आई विल टेल राइट नाउ। वैसे तो जैसे होता है ना कि आलू की सब्जी हर घर में फर्क बनती है, सेम वे हर बॉन्साई आर्टिस्ट की अपनी मिट्टी की रेसिपी अलग अलग होती है, बट जो बेसिक रेसिपी हम लोग यूज करते हैं जो कि यहाँ पे हमें कामयाब मिली है, फाइकस के लिए या जिन पौधों को पानी चाहिए होता है उसके लिए आप उनमें मिट्टी जब बनाएंगे 4 हिस्से होंगे आपकी मिट्टी के। ये मेरी रेसिपी है, मेरे किसी फेलो फ्रेंड की डिफरेंट रेसिपी भी हो सकती है क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो मेरे पौधों में 25% गार्डन की सॉइल, जो आपके गार्डन से आप निकालोगे सॉइल, लेकिन वो सॉइल पीली नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल खाद कभी जिंदगी में ना डालिए, बेसमेंट की खुदी हुई मिट्टी नहीं चाहिए हमें। आपके गार्डन में जो मिट्टी सीजनड हो गई है, वो गमलों की पलटी हुई मिट्टी या ऐसी, आप उसको यूज कीजिए। 25% वो, 25% गोबर की खाद सड़ी हुई, 25% लीफ मोल्ड, 25 के 40% कर लीजिए वो, और 35% आप उसको गोबर की खाद कर लीजिए। उसके साथ में आप डालते हैं थोड़ा थोड़ा एनपीके। एनपीके में नाइट्रोजन होता है। जब अगर आपका पौधा नया है तो आपको ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए पौधे को, मोटी मोटी ब्रांचेस बनाने के लिए, मोटी टहनियां बनाने के लिए। उस टाइम में आपको नाइट्रोजन रिच देना है, ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देनी है। लेकिन एक बार जब आपका पौधा डेवलप हो जाता है, आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना है। उस टाइम में आप कम नाइट्रोजन वाली भी खाद डाल सकते हैं। और वैसे तो जैसे हम लोग डालते गोबर की खाद डालते हैं, इसमें भी काफी नाइट्रोजन होता है। सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग डालते हैं तो नाइट्रोजन रिच डालना है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूर डालने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका जिंक है, बोरॉन है, पोटेशियम है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। तो ये इस आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अलग मिलते हैं, देवी शक्ति मिलता है और बहुत सारे मिलते हैं। आजकल हम सीवीड बायोविटा बहुत डालते हैं, सीवीड बायोविटा डालते हैं तो उससे उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये मेरी खाद की, और ये हम खाद बेसिक बनाते हैं। बिल्कुल हमारी काली खाद होती है, आप देखेंगे बिल्कुल काली खाद होती है हमारी, आप देखेंगे बिल्कुल काली खाद होती है, मिट्टी तो नजर भी नहीं आती है इसमें। तो इस तरीके की आपको खाद बनानी है। उसके अलावा हम जब ग्रोइंग टाइम होता है उसमें हम उसमें रेगुलरली 15 दिन के गैप से लिक्विड मैन्योर देते हैं। जो किचन गार्डन के मेंबर हैं वो जानते हैं, अमृत जल बनाते हैं हम लोग, या लिक्विड मैन्योर हम खली को भिगो के उसका सड़ा के उसका पानी देते हैं डाइल्यूट करके, तो लिक्विड खाद हम देते हैं। कोशिश हम ये करते हैं शुरू में जब पौधा हम बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हर साल रिपोर्ट करें, क्योंकि वो ग्रोइंग है। जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसी ढंग से नए पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, बट जैसे जैसे पौधा मैच्योर हो गया उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तब हम उसको 2 साल में, फिर 4 साल में, फिर उसके बाद में हम उसको रिपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं। सिर्फ ऊपर की टॉप सॉइल को चेंज करते जाते हैं, और जो लिक्विड मैन्योर हम दे रहे हैं रेगुलरली उससे उसका खाना पीना चलता रहता है। जब हम उसकी रिपोर्टिंग सिर्फ तब करते हैं जब उसकी देखते हैं कि ट्रे जो है जिसमें है वो उससे बड़ा हो गया है और उसकी जड़ें बिल्कुल रूट बाउंड हो रहा है, वो उस टाइम में हम उसमें वो डालते हैं, जिससे उसको रिपोर्ट करते हैं जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? शी somebody has said कि वास्तु के हिसाब से वास्तु वाले मना करते हैं, बट मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा और मैं शायद बहुत सालों से इसका आंसर दे रही हूँ। हमारे हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, आप ये बताएं सपना जी, कोई भी पौधा नेगेटिव, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो।
मेरे हिसाब से कोई चीज दुनिया में नेगेटिव नहीं है, तो पौधे भी नेगेटिव नहीं हैं। वास्तु के हिसाब से वो कहते हैं आप काटिए नहीं पौधों को, आप काटते हैं, उनको छोटा कर देते हैं, इसलिए आप उसमें नेगेटिविटी लाते हैं, ऐसा नहीं है। या आप उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं इसलिए नेगेटिविटी उसमें आती है, ऐसा नहीं है। अब जितना मैंने बताया इतनी खाद तो आप अपने नॉर्मल पौधों में, गार्डन में भी कभी नहीं देते होंगे। इतनी हम इसको बच्चे की तरह हर 15वें दिन खाद देते हैं, इसकी धुलाई करते, शैम्पू से इसकी धुलाई होती है हर पौधे की, महीने में एक बार बारिशों के मौसम में, कि कहीं कोई कीड़ा ना लग जाए। मतलब एक बहुत अच्छे से बच्चे की तरह केयर करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपके पास चाहे इतना सा बॉन्साई है चाहे बड़ा वाला बॉन्साई है, आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो यही कहेगा, ओ वाह कितना अच्छा पौधा है। शायद मेरे हिसाब से नेगेटिविटी तो नहीं आती पौधे से, पॉजिटिविटी ही रहती है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं आप पौधे को काटते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप पौधों को काटते हो, आपके बच्चे छोटे रह जाएंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। मैं, मेरे ख्याल से मेरे बेटा 1 साल का था तब से ये काम कर रही है, और वो 6 फुट लंबा तो वो है और 5 फुट 7 इंच लंबी मेरी बेटी है। तो मेरे यहाँ तो कोई, शायद मैं छोटी हाइट की हूँ लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत लंबे हैं। सो ये तो मेरे यहाँ दिक्कत शायद नहीं आई, और मुझे नहीं लगता किसी के। आप हेज भी तो काटते हैं, हेज की कटिंग करते हैं, आप अपने बालों की कटिंग करते हैं, आप अपने नेल्स की कटिंग करते हैं, शेप देने के लिए ना, कि वो ब्यूटीफुल लगे। या नेचर का लॉ है कि आपको कट शॉर्ट तो करना ही है। अगर आप किसी चीज को कट शॉर्ट करके उसको सुंदर बना रहे हैं और सुंदर रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बॉन्साई में कोई नुकसान नहीं है। वेल सेड, बहुत अच्छा बोला शीला आपने। जी। नेचर है और एस्थेटिक्स डिमांड करती हैं। जो सड़कों पे पेड़ लगे होते हैं इतने बड़े बड़े, उनको भी प्रून करना पड़ता है। जी, उनको भी प्रून करना। आप अपने घर की झाड़ियों को भी प्रून करते हैं। नींबू का पौधा है, उस दिन बता रहे थे किचन गार्डन की मीटिंग में, उसको भी आपको प्रून करना है अगर फ्रूट लेना है तो। अगर आप उसको प्रून नहीं करेंगे तो फ्रूट आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे करके फ्रूट छोटा हो जाता है। आम इतने बड़े बड़े, उनको भी हम प्रून करते हैं क्योंकि उनसे दोबारा रीग्रोथ, क्योंकि कोई भी चीज है जैसे प्लांट से, अगर आप उसको नहीं काटेंगे तो वो उस जगह पे जाके खत्म हो जाता है कि हाँ मैंने जी ली अपनी जिंदगी, वो बिल्कुल लैंकी होके धीरे 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 मर जाता है। आपको उसको कट करके, जिससे उसमें दोबारा ग्रोथ आती है, उसमें विड्थ आती है, मोटा आता है, सारी चीजें आती है। तो आप हर चीज को कट करते तो व्हाई नॉट दिस। आप इसको एक सुंदर कैनवस के साथ लगा के दिखाइए ना, ये आपका मास्टरपीस है, आपकी आर्ट है। क्वेश्चन है इस प्लांट रीपॉटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, और टूल्स के बारे में, बॉन्साई के टूल्स के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग में आपको कोई बहुत ज्यादा हाई फाई वाले टूल्स नहीं चाहिए। सिंपल गार्डन की कैंची जो आपके पास है, सबसे शुरू में आपको यही चाहिए। और पहले शुरू के 3-4 साल के लिए ये, इसके साथ में एक प्लास, जो प्लायर नॉर्मली घरों में होता है वायर को टर्न करने के लिए, वायर काटने के लिए, बस इन 2 चीजों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब बहुत आपके पौधे बड़े हो जाते हैं और बहुत आप उसमें चले फाइनर वर्क में जाते हैं, तब आपको थोड़े डिफरेंट टूल्स चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि ये होता है, ये वायर कटर हम बाद में यूज करना शुरू करते हैं। प्लायर से भी वो काम होता है, इससे थोड़ा फाइन वर्क होता है, मेहनत कम लगती है। तो ये वायर कटर हम यूज करते हैं। ये एक होता है कॉनकेव कटर, ये आपको थोड़ा सा 5 साल 10 साल आप सीख लेंगे, उसके बाद आपको जब आपका पौधा मोटा हो जाएगा तब चाहिए होता है। इसका पर्पस क्या होता है, जैसे आपका ये टहनी है, आप इसको जिससे काटते हैं, ठीक है, नॉर्मल आपने कैंची से काटा, मैंने बताया यहां से आपको काटना है, इसको छोड़ के, तो थोड़ा ऊपर से आप काटेंगे, यहां से काटेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहां से काटा तो ये रह जाता है, ये स्टब रह जाता है, ठीक है। इस स्टब को थोड़े टाइम के बाद में, ग्रेजुअली कुछ साल के बाद, ये अपने आप सूखते सूखते, यहाँ से उसकी एनर्जी यहाँ पे है उसकी, तो यहाँ तक वो अपने आप सूख जाता है, और उसके बाद में आप उसको तोड़ के गिरा दें। लेकिन यही जो होता है, ये कॉनकेव कटर, ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस के होते हैं। इससे अगर आप इसको काटेंगे तो क्या होता है, वो जब कटता है तो एक ऐसे करके कॉनकेव शेप आ जाती है। उससे क्या होता है, आपके पौधे में वो स्टब वाली लुक नहीं आती, इंस्टेंट आपका वो होता है। तो ये बहुत बाद के टूल्स हैं। शुरू के कुछ सालों में आपको सिंपल गार्डन वाली कैंची,
लीफ प्रूनिंग की, और एक प्लास चाहिए, प्लायर चाहिए जिससे आप वायर को काट सके। इसके अलावा और कोई टूल आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। कुछ और क्वेश्चन? अच्छा, ये कटते कटते आपको बहुत बार इसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। What style is this? दिस इज इनफॉर्मल अपराइट। आप देखेंगे ये यहां से स्टार्ट हुआ, हल्का सा इसमें बेंड आया, फिर उसके बाद जाके इसकी फर्स्ट ब्रांच आती है। जो फर्स्ट ब्रांच आती है वो 2/3 लेवल पे नॉर्मली कहते हैं आनी चाहिए। ये रूल्स हैं। जैसे आप किसी भी चीज को करेंगे तो आपके पास सेट रूल्स का एक लिस्ट दी जाती है कि आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए टू मेक द गुड बॉन्साई। तो वही चीज है कि फर्स्ट ब्रांच, फिर ये इसकी सेकेंड ब्रांच है, ये बैक ब्रांच है, ये ऊपर की ब्रांचेस ग्रेजुअली आती जा रही हैं, और ये टॉप पे जाके तो ये इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल है। Please give percentage constituents of soil mix. सॉइल मिक्स 25% गार्डन सॉइल, आपकी जो गार्डन की सॉइल होगी जो कि थोड़ी सीजनड होगी। ये नहीं कि आप बेसमेंट की खुदी हुई पीली मिट्टी नहीं लानी है, जो आपकी खाद डलते डलते पुरानी मिट्टी होगी उसको छान लीजिए। वो उसके बाद में 40% उसमें मैं डालती हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद। कच्चे गोबर की प्लीज मत डालिएगा, नहीं तो इतने कीड़े हो जाएंगे आपके पौधे में कि आपसे समेटे नहीं जाएंगे। वेल रॉटन। उसमें आप डालेंगे कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट डालते हैं हम। 35% लीफ कंपोस्ट, 40% ये, 25% मिट्टी। उसके अलावा एनपीके, बोन मील और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोविटा डाल देते हैं उसमें। लेकिन बहुत सारे पौधे, जैसे अब ये पौधा है, इसको चाहिए पानी। आपको हर पौधे की रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। ये पौधा जैसे है, इसको चाहिए बहुत पानी, तो इसलिए आप इसके जो मिट्टी होगी उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं डालेंगे। आप सब मेरे ख्याल से कैक्टस ये उगा रहे होंगे, तो जो जेड है, जेड की मिट्टी आपकी थोड़ी डिफरेंट बनेगी। जेड की मिट्टी थोड़ी सी आपको पोरस बनानी होगी, और आजकल तो हम इवन इस वाली मिट्टी को भी पोरस बनाने के लिए इसमें लीका बॉल्स मिल रही है मार्केट में। लीका बॉल्स भी नहीं खरीदनी है आपको, आपके टूटे हुए गमलों की ठिक्कर है उसको बारीक करवाइए, 2 मिलीमीटर के पीसेस, उसको चूरा बिल्कुल चूरा नहीं करना, मोटे पीसेस हैं, उनको धुलवा लीजिए अच्छे से और उनको इसमें डालिए। उनसे फायदा क्या होता है, और इसमें डालिए बदरपुर। बदरपुर जो होता है उसको छान लीजिए। बदरपुर छानने के बाद जो उसका मोटा वाला हिस्सा होता है वो इसमें आप मिलाएंगे। उनसे क्या होता है, मिट्टी में गैप बनने शुरू हो जाते हैं। तो जितना गैप बनेगा उतनी नई वाली जो फाइब्रस रूट्स हैं वो भागती हैं, उनको स्पेस मिलती है, वो भागती है, और उतना आपका जितनी रूट्स बढ़ेंगे उतना पौधा आपका ऊपर वाला पोर्शन जल्दी डेवलप होएगा। तो आप उसमें पोरस मिट्टी बनाइए, बिल्कुल ठस मिट्टी नहीं बनानी है आपको। उसमें बदरपुर को छान के धो के वो मिक्स करना है, और साथ में आपके गमले टूटे हुए उनकी ठिक्कर को बारीक करा के वो मिक्स कीजिए। सारे ब्रांचेस की हाइट, ब्रांचेस की एज सच कोई हाइट। अच्छा, प्लेसमेंट में ये होता है कि जो आपका 2/3 होता है, 3 हिस्सों में आप अपने पौधा जो आप चाहते हैं एक हाइट का बनाना पौधा, उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। जो पहली ब्रांच है 2/3 हिस्सा छोड़ के फिर होनी चाहिए, और बाकी ब्रांचेस ऊपर के हिस्से में सेटल होनी चाहिए। 1/3 पे फर्स्ट ब्रांच, उसके बाद में आपकी बाकी दो हिस्से जो आपके हाथ में, उसमें आपकी बाकी सारी ब्रांचेस होंगी। और ब्रांचेस आपकी ये नहीं होंगी कि आप 3D इफेक्ट देना है आपको। तो 3D इफेक्ट देने के लिए आपकी एक ब्रांच लेफ्ट को है, एक राइट को है, तो तीसरी पीछे को होगी। पहले बहुत फिक्स होता था, पहले रिजिड रूल्स हम फॉलो करते थे। उसमें क्या होता था कि एक लेफ्ट को है तो दूसरी राइट को कंपलसरी है, और तीसरी बैक में जरूरी। अब क्या है, रूल्स को बहुत ज्यादा लीनियंट बना दिया गया है। तो उसमें क्या है, आपकी पहली ब्रांच पीछे भी हो सकती है, लेफ्ट को भी हो सकती है, राइट को भी हो सकती है, लेकिन बेसिक है आप तीनों 3D इफेक्ट दें, आप हर तरफ को करें। लेकिन कोई भी ब्रांच आपकी
सीधी आगे को नहीं आएगी। जैसे यहाँ से है, कोशिश आपकी ब्रांचेस होनी चाहिए कि कोई भी ब्रांच है जैसे यहाँ पे उग रही है तो मैं उसको टर्न करके उधर को लेके जाऊं, वो नहीं करते। टर्न आपको करके ले जाना है तो आप पीछे से लेके जाइए। जो ये चीज है, ये ट्रंक लाइन, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए। इसके आगे से आप ब्रांच नहीं ले जाएंगे और कोई भी ब्रांच सीधी ऐसे नहीं आएगी आपकी तरफ कि आपको लगे ओहो ये मेरी आंख में चुभ जाएगी। ऐसी कोई भी ब्रांच, पोकिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लेफ्ट या राइट में जाके डेवलप कीजिए उसको। Right now, getting the wire from Khadi Goli is not possible. Yes, these days it's not possible. So I am also working with my old wires को सीधा करवा के यूज कर रही हूँ। आप इधर के हार्डवेयर कोटला के ट्राई कर सकते हैं, आप हार्डवेयर स्टोर्स उनके पास मिल जाएगी। विदाउट वायर कट एंड ग्रो के मेथड से ही डेवलप कीजिए। अमेज़न से ट्राई कर सकते हैं, अमेज़न से आपको वायर्स आ जाएंगी। Right now, you spoke about shampooing plants. Yes. How to prevent the plants from diseases? That's it. Normally, for bonsai, we don't prefer inorganic chemicals को हम मैक्सिमम यूज नहीं करते, कोशिश करते हैं ना यूज करें केमिकल्स बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको लग रहा है आपके पौधे में कोई कीड़ा लग गया, आप सिंपल काम कीजिए, आप इसकी ये जो नीचे की जगह है, जो मिट्टी वाली जगह है, उसको आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए। ठीक है, पॉलीथीन से कवर करके, या अगर हल्का पौधा है तो आप एक सॉल्यूशन बनाइए जिसमें आप 1 चम्मच प्रोटीन शैम्पू मिक्स करेंगे। प्रोटीन शैम्पू मिक्स कीजिए, या आप कोई भी सोप भी, अपना नहाने वाला सोप भी माइल्ड होता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और उसमें डालिए थोड़ा सा नीम का तेल, आधा चम्मच नीम का तेल डालिए और अपने पौधे को बहुत अच्छे से इसकी पत्तियों के ऊपर डालिए। अगर छोटा पौधा होता है, मैं तो क्या करती हूँ कि बड़े टब में बनाया और पौधे को उलट देते हैं उसमें। अब उलटने से क्या होता है, वो पौधे डिप हो जाता है पानी में, तो उसके जो नीचे की अगर कीड़ा लगा है वो भी धुल के साफ हो जाता है। और ये चीज आप हर 15 दिन पे कर सकते हैं। अगर आपको जब तक लग रहा है कीड़ा है, या एक बार तो ये बरसात का मौसम में कोई ना कोई कीड़ा हो ही जाता है, उस टाइम में आप इसको एक बार तो कर ही दीजिए। How to wire sub branches? From where do we have to start? सब ब्रांचेस के लिए आपने पहले मेन ब्रांच में 2 ब्रांचेस किया, थोड़ा सा अंकित कैमरा इधर कर दो। जैसे आपने किया तो 2 ब्रांचेस को एक साथ किया, उसके बाद आपने डेवलप किया तो ये आपकी सब ब्रांचेस आ गई हैं। जैसे ये वाली हैं, उसमें आपने 1 ब्रांच और 2 ब्रांच, 2 ये ब्रांचेस पकड़ के 2 को वायर किया, फिर इधर 2 निकली, उन 2 को वायर किया। इस तरीके से चलते हैं। 2 ब्रांच पकड़ के आप सब ब्रांचेस को आपस में 2 ब्रांचेस को लेके आप वायर कीजिए। What plants are more suitable as bonsai? Yes, I already told, अब मैं रिपीट कर देती हूँ। उसके लिए आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जंगल जलेबी, फाइकस की मैक्सिमम वेराइटीज एक्सेप्ट बरगद। बरगद को कर सकते हैं बट उसकी पत्ती बहुत बड़ी होती है तो आपका लुक नहीं आएगा। फाइकस लॉन्ग आइलैंड, फाइकस हाई आइलैंड, फाइकस वेरिएंस, ये वेरीगेटेड वाला है। फाइकस माइक्रोकार्पा, वही मैंने बताया ना, 2009 में हम लोग ताइवान गए थे कन्वेंशन के लिए, वहां पे ये सारे प्लांट्स हमने देखे थे और हम ट्रायल के लिए लेके आए थे और बहुत बहुत अच्छे चल गए हमारे यहाँ। अब तो मेरा जो फाइकस माइक्रोकार्पा है वो इतना मोटा है नीचे से। तो फाइकस माइक्रोकार्पा इज वेरी वेरी नाइस प्लांट फॉर दिस थिंग। उसके अलावा आपका जंगल जलेबी हो सकता है, जेड का प्लांट है, जेड की आप बना सकते हैं। कैजुरीना, ये मेरा पौधा जो है कैजुरीना का, इसको हम अपना देसी पाइन कहते हैं। ये पाइन की तरह डेवलप करते हैं हम पूरा। हमारे यहाँ पाइन नहीं चलता, दिल्ली में तो पाइन कभी नहीं चलता, जैसे ही मौसम चेंज होता है उसकी वो डाईबैक स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये कैजुरीना है, और कैजुरीना ये देसी वाला नहीं है, ये थाईलैंड वाला कैजुरीना है और ये बहुत अच्छा चलता है। और आप इसकी इवन ये छोटी सी ये लगा देंगे ना आप, ये मौसम चल रहा है, अगर आप इतने से को भी आप लगा देंगे तो ये कटिंग जड़ पकड़ जाती है और बहुत कुछ ही टाइम में आपका बहुत अच्छा मोटा पौधा तैयार हो जाता है। इवन इसकी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन जो हमारे उधर कर रहे हैं
केरला के पास में है, वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं इवन ये जो नीडल है ना, वो इनको भी लगा देते हैं और ये भी अलग पौधों में डेवलप हो जाती है। तो बोगनविलिया बॉन्साई भी मेड? यस, बोगनविला कैन बी मेड एज ए बॉन्साई, लेकिन उसके लिए आपको मिट्टी बहुत पोरस करनी होगी। उसकी कटिंग प्रूनिंग का टाइम आपको बहुत बहुत ज्यादा बारीकी से देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है बोगनविला। लेकिन उसकी क्या होता है, गलता बहुत जल्दी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखते हैं जहां उसको पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, उसको गीली रूट्स चाहिए ही नहीं बॉन्साई को। जहां उसमें रूट्स में पानी इकट्ठा हुआ, वेट रूट हुई, वो मरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको ये मिट्टी को बहुत पोरस बनाना है। हफ्ते में 1 दिन आप पानी दीजिए जेड को, बोगनविला को। मेरे पास गूगल के बहुत बॉन्साई हैं, गूगल को, इनको सबको आपको हफ्ते में 1 दिन जम के पानी दे दीजिए, मतलब भर के पानी दे दीजिए और फिर 1 हफ्ते के लिए भूल जाइए उनको, फिर अगले हफ्ते पानी दीजिए और वो खूब बढ़िया चलते। पोरस मिट्टी, रुकना नहीं चाहिए पानी उनके अंदर, तो बोगनविला बहुत अच्छा चलता है। लीफ कर्लिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन? लीफ कर्लिंग की तो वही है, आपको धोना पड़ेगा अच्छे से, उसको ट्रीट कीजिए। कटिंग द रूट्स? कटिंग द रूट्स, वही कटिंग द रूट्स होता है। जब मैंने सीखा था, जो मुझे मेरे बगल में आंटी थी वो बनाती थी, उन्होंने बताया बेटा मैं रूट्स को भी ना कॉपर वायर से वायर करके बांधती हूँ। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो टेक्निक है ही नहीं। आपको रूट्स तब काटती है जब आप रीपॉट करेंगे, उस टाइम में आप जब निकालेंगे उसको, जो लटकती हुई जड़ें उनको काट दीजिए, 1/3 काट दीजिए और उसको दोबारा लगा दीजिए। साथ में उसमें रूटिंग हार्मोन, मैं क्या करती हूँ, एक फ्यूमिक एसिड आता है, फ्यूमिक एसिड को थोड़ा सा पानी में मिला के आप उसको दीजिए। फ्यूमिक एसिड जो है वो रूट्स को, सफेद वाली रूट्स जो कि खाना खिलाती है प्लांट को, उनको दौड़ाता है एकदम से। तो जब आप रीपॉट करते हैं तो उसको जरा सा पानी में डाल दीजिए, बहुत लाइट डालना पड़ता है। तो वो भी, और फ्यूमिक एसिड भी मैं मार्केट का नहीं यूज करती, मैं अपना घर पे बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीका है उसका भी। Can a drying trunk of jade of a full cascade be saved? जेड, ड्राइंग ऑफ जेड, Dying. डाइंग, हाँ डाइंग में वही है, डाइंग ना, सूखना मतलब मर ही रही है ना वो, दैट्स द थिंग। तो जेड क्यों मर रहा है, वही रीजन है, पानी आपने उसको जम के पिला दिया है और उसमें धीरे धीरे वो गलना शुरू हो गया है। तो आप उसमें कीजिए, आप जितना गल रहा है उतने हिस्से को खोखला दीजिए, स्कूप आउट कर दीजिए। जो जैसे हाथ टच करने से आपको गिलगिला लग रहा है, उतने पोर्शन को आप स्कूप आउट कर दीजिए और स्कूप आउट करके उसमें बेविस्टीन भर दीजिए अच्छे से और उसको बिना पानी दिए रख दीजिए कोने में, धूप लगने दीजिए उसको, बच जाएगा, होपफुली बच जाएगा। What manure to be given to ficus bonsai and when? सेम एज ए मैन्योर, जो हम लिक्विड, ये आपने एक बार दे दिया, पूरा मिट्टी तैयार कर दी, उसके बाद में हम बायोविटा के पैकेट आते हैं मार्केट में, सीवीड होता है, सीवीड की मैन्योर होती है, उसकी दाने दाने हर थोड़े दिन में एक इतना सा आप लीजिए, 25-30 दाने बहुत हैं एक पौधे के लिए, उनको साइड में वो रख दीजिए। रूट, आपको कोई भी खाद देनी है हमेशा के लिए, जड़ जहां आपको दिख रही है ना तना, वहां कभी भी नहीं देनी है। रीजन, तने के पास की रूट्स हो गई है पुरानी, वो खाना नहीं खिलाती पेड़ को। जो खाना खिलाने वाली रूट्स होती है वो होती है जो पतली वाली रूट्स होती हैं, वो खाना खिलाती हैं, और वो इससे जितनी आपका ऊपर पेड़ है उतनी नीचे है। तो जहां आपका पेड़ है बिल्कुल इसके किनारे किनारे आपकी वो खाना खिलाने वाली रूट्स हैं। तो जो भी आप खाद देंगे वो आपको इसकी किनारे पे, रिम के आसपास देनी है। यहाँ पे तने के पास देना यूजलेस है, आप खाद वही देंगे आप। तो पहले तो हम ये देते हैं, उसके बाद बायोविटा की ग्रेन्यूल्स आते हैं, एक पैकेट आपने मंगा लिया तो 1-2 साल की छुट्टी, 20 दाने आपको डालने हैं रिम के आसपास में। उसके अलावा हम देते हैं लिक्विड मैन्योर। लिक्विड मैन्योर में जैसे गोबर को, सड़े हुए गोबर को भिगो देते हैं, उसको छानते हैं और उसको बहुत डाइल्यूट करते हैं, इतना डाइल्यूट करते हैं जैसे आपकी ग्रीन टी होती है, इतना उसका कलर लाइट आना चाहिए। वो हम हर 15वें दिन देते हैं, वो इसकी खाद पानी का इंतजाम रखता है। इसके अलावा और कोई खाद पानी नहीं देना आपको। और कोई क्वेश्चन? अभी ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अब आपको पूरी इसकी ब्रांचेस दिखनी शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे इसकी साइड ब्रांचेस हैं, इनको डेवलप किया जाएगा।
और इस तरीके से ये काम चलता रहेगा. So this is the final thing for today. अभी इसमें बहुत काम बाकी है. Any? हाँ जी. You have added immense value. I can't share. जो आपने यहाँ पे value add करी है. I've been getting messages. Facebook से भी I'm getting messages from our members. Very invaluable. So nice for giving me this opportunity. I'm really grateful. So you people gave me this opportunity to share my whatever I have learned since many years. So to share with you, and I'm always there to share. Whenever anyone have any problem, my number is with you. Can call me anytime, and you can come to my home. एक बार कोरोना खत्म हो जाए, then plan a visit to my place. Sheil, what I suggest right now, क्योंकि हम लोग हमेशा programs time से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं बिल्कुल time से बंद करें, इसलिए क्योंकि we value everybody's time, including yours, ours, and all the members, है ना? तो सब लोगों के अपने अलग plans होते हैं. तो today we will end the session by thanking you from the bottom of our hearts. You've added immense value, and Thank you very much. To be in touch with you and coordinate a mutually conducive date. और definitely I can see कि लोगों के questions खत्म नहीं हो रहे. Anytime they can call me and ask me whatever they want. I'm always there for everyone. Perfect. So what we have to मेरा ये है कि जितनी आपके पास कुछ थोड़ी बहुत समझ है उसको सबके साथ बांटते रहिए, सब उसका फायदा होता है. Absolutely. तो हमने आपका नंबर चैट में शेयर कर दिया. आपके इंस्टा डिटेल्स भी शेयर. मेरी इंस्टा डिटेल है शील बॉन्जाई. We've already shared. Yes. Thank you, and we thank you प्यारी सी बहुरानी जो तुमको इतना हेल्प कर. कम. शील जी, मैं भी अपने सारे बॉन्जाइज की ना आपको फोटो भेजूंगी. ये मेरी बैकबोन है, मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड, एवरीथिंग. शी इज द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, एंड माय सन. ग्रेट बेटा. परफेक्ट. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे. थैंक यू वेरी मच. प्यारी सी बहुरानी को थैंक्स करते हुए, शील आप हमसे पहले से जुड़ी हुई हैं और इसी बिल्कुल आपसे मैं हमेशा जुड़ी हुई हूँ. मैंने आपका वर्क देखा है एट द लोधी, जहाँ पे था. I've seen your stature, I've seen your work, so I take immense pride and I'm very grateful for you being here on the session. And thank you सपना जी. और सृजना, थैंक यू वेरी मच. मैंने तुम्हारा बहुत दिमाग खाया है. Sajna is handling our all online sessions. We are in touch with each other. Almost every day we were talking. कोई दिमाग नहीं खाया आपने. It was my pleasure totally. Thank you. And I am there for everyone. Whoever feels कि कुछ कहीं अटक रहे, I am there for him. Thank you, dear. On this note, Vandana Di and I, founders of Devditi Foundation, along with Srajna, जो पूरे इस ऑनलाइन सीरीज के कोऑर्डिनेटर है, we thank you, and I thank all of you for listening me so patiently. Welcome, and we want to invite all of you here on the session for all our sessions. So kindly, I'm always there. सजना को अपने नंबर्स दे दीजिए, चैट पे ही दे दीजिए, जो भी कनेक्ट होना चाहे. Today is the 98th session. 2 दिन में ही हमारा 100th a very happening session देवदीति का होने वाला है. लॉकडाउन ने सबको बहुत कुछ दिया, देवदीति को ये ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस दिए हैं. और कल का सेशन मत भूलिएगा. It is very important because English being a foreign language, all of us atko somewhere in pronunciations. So tomorrow's session is by Rukansha, who will share pronunciations for us adults, not for बच्चास. Okay? हम बड़ों के लिए कि हम कहाँ गलत हो जाते हैं, हो सकते हैं, और कैसे अपने आप को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ठीक कर सकते हैं. So be with us tomorrow at 4 and day after tomorrow for our 100th session. We have a fabulous afternoon plan with lots of giveaway prizes, lots of recognition, lots of मस्ती. 100th session पे जरूर आइएगा. पर कल का सेशन है. Thank you everyone for listening so patiently. Thank you.